हाँ जी, दोबारा से हमारा लाइन पे आ गया हूँ। हाँ जी, प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन। हाँ कनिष्क, आवाज दीजिए, आंसर दीजिए इसका। हेलो, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो, ये बता दीजिए। यस सर। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर किसी को आता है इसका? प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन। रितिका, आई थिंक आपको आता होगा। सर may I sir? You can. Sir, this is true that protecting the assets of business is amongst one of the key role of accounting. An accountant has to design such system of accounting as protect its properties from unjustified and unwarranted use. He performs this function by recording all the assets or properties of the business property in the books of accounts so that the property can be protected. बिल्कुल सही आपका आंसर, कि आपका ये एक फंक्शन है आपके अकाउंटिंग का, टू प्रोटेक्ट द एसेट। हाउ इट विल प्रोटेक्ट द प्रॉपर एसेट्स मीन्स द इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड द एसेट्स on the historical basis, and by this way the record kept in the book of account and this cannot be deleted। तो आपका जो बुक्स में का रिकॉर्ड जो है वो एसेट्स का आपका जो बुक्स के अंदर मिलेगा, तो इस प्रकार से उनका वैल्यूएशन जो है पर ईयर के हिसाब से किया जा सकता है। इस प्रकार से एसेट्स आपकी वो प्रोटेक्ट होती हैं। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लेन अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रितिका, आप बता दो, आपको अभी मैंने बताया था इस बारे में। Ritika, are you hearing me? 1 minute, I am asking from Ritika. Ritika, are you hearing me? और कौन है क्लास में? आवाज नहीं सुन पा रहे, पता नहीं रितिका थी तो क्लास में। ईशांत, ईशांत, आर यू हियरिंग मी? ईशांत? यस सर। हाँ, जवाब दीजिए बेटा। Sir, accounting is referred as the language of business. So there are some persons for which accounting is standard as a source of information. First, internal users. These are the persons who have direct interest or relation with the business enterprise, such as owners, managements. Second, external users, individuals or organizations of present or future interest in business enterprises, who have present or future interest in business enterprises but are not not take part in the management, are called external users. Also, investors. Investors are the persons who invest in a business enterprise in order to make profit in the business. So by taking a profit and loss, by seeing our profit and loss accounts, balance sheet, etc., they can help. They can easily invest in our business. In this way, accounting refers as a source of information. बिल्कुल सही आपका आंसर एकदम से, और भी ज्यादा डिफाइन किया आपने, अच्छी बात है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस? हाँ जी, लक्षित। लक्षित आपके लिए, हाँ आप तो करेंगे ही, मैं लक्षित से पूछने पर लक्षित अगर जवाब दे तो। लक्षित है, ईशांत है या रुद्र है, कौन से हैं, बात करिए। रुद्र, रुद्र जवाब दीजिए इसका। यस सर। हाँ जवाब दो बेटा इनका, थोड़ा वो जवाब, पार्टिसिपेशन करो आप क्लास में, चाहे आए या ना आए कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये कि आप पार्टिसिपेशन करोगे तो लगता है कि हाँ बच्चा क्लास में हर कुछ कर रहा है। तो अगर इसका जवाब दीजिए। सर मैं बताऊं? हाँ, आपसे तो बाद में पूछेंगे। एक बार रुद्र से देखते हैं, अगर बताता तो रुद्र से देखता हूँ, बताता तो नहीं फिर आपके लिए क्वेश्चन ही। रुद्र, क्या आपको क्वेश्चन का आंसर आता है? यस और नो? नहीं आ रहा, चलो ईशांत आप बता दो।
Accounting is both an art as well as science. It can be seen in the following points. Accounting as an art. As an art is the technique of achieving some predetermined objectives. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing financial transactions of the business. And accounting as science. Science is an organized body of knowledge based on certain basic principles. Therefore, accounting is also a science as it is an organized body of knowledge based on certain accounting principles. ठीक है जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। हाँ ईशांत, आप क्या नाम है, ये कनिष्क बता रहा था इसका आंसर कोई? कनिष्क आप बता दीजिए। Yes, sir. आंसर दीजिए थर्ड क्वेश्चन का। Accounting is both an art as well as science. It can be seen in the following points. First, accounting as an art. As an art, it is technique of achieving some predetermined objective. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing financial transactions of the business. It helps us in ascertaining the net profit and financial position of the business enterprise. Second, accounting as science. Science is a body of knowledge based on certain basic principles. Therefore, accounting is also a science as it is an organized body of knowledge based on certain accounting principles. ठीक है जी, थैंक यू। चलो इतने चल जाएगा काम, को दिक्कत नहीं, समझ गया बात को। आज आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली appreciate the abstract nature of accounting. Briefly appreciate the abstract nature of accounting. हाँ जी बोलिए। The nature of accounting are mentioned below. First, accounting is a process that aims at communicating economic information to its users. Second, accounting is a process which involves gathering, compacting, interpreting information in a systematic way. Third, accounting is more of an art than a science. Its logical foundation is more deeply embedded in scientific or natural law. It is essential and fundamentally utilitarian in nature. Fourth, accounting is important tool for management as it helps them in decision making for the organization. Its basic goal is to report on the resource and obligation of entity to owners. ठीक है जी, बिल्कुल सही है। आज अगला क्वेश्चन है, what do you mean by asset and what are the different type of the assets? What do you mean by asset and what are the different type of assets? आज रितु अगर सुन रही तो आवाज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रितु नहीं बोल रही। चलो हितेश होगा, हितेश होगा, और भी मेरे को क्योंकि नाम नहीं दिखाई दे रहा, मैं नहीं बता पा रहा हूँ और कौन कौन होंगे। हाँ जी, अजय, इन दो अजय, ध्रुव, हर्ष, हिमांशु, ईशान, कविराज। और कौन है? लक्ष्य May I, sir? सर अजय, गर्ग, ध्रुव, हर्ष, हिमांशु तनेजा, ईशान, पारस, रविजराज, रितिका देवी, रितु, रुद्राक्ष, संदीप। हाँ, तो रविजराज जो है इसका आंसर बताए। रविजराज आप सुन पा रहे हो रविजराज मेरे को? हाँ, आप सुन पा रहे तो आप इसका आंसर दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एसेट्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बोलिए। शाबाश सर। एसेट मतलब जो हमारे बिजनेस में हमारे ऑफिस की पर्सनल यूज हो जाती है, ऑफिस के मतलब जो चीज हो जाती है, जैसे फर्नीचर हो गया। हाँ ठीक है।
टाइप ऑफ द एसेट्स कौन कौन सी हो गई? टाइप ऑफ द एसेट्स, चलो कोई बात नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ जी, अजय अग्रवाल, अजय गर्ग, सॉरी। Yes, sir. अजय आप आंसर दीजिए इसका। Sir, asset What? means sir, asset means that all the sir जो कि हमें सर बेनिफिट देती है, कोई भी चीज हमें जो फ्यूचर में ऐसी बेनिफिट देती है जो कि बिजनेस की होती है, खुद की होती है सर। और सर एसेट सर टू टाइप्स के सर, टेंजेबल इनटेंजेबल सर। तो टेंजेबल जिन्हें हम सर छू सकते हैं, जैसे सर जो कि फर्नीचर हो गया सर, मशीनरी होगी। और सर जो इनटेंजेबल होता है सर, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया सर, जिन्हें हम छू नहीं सकते सर। दीज आर द एसेट्स। उसके बाद यही में सर। फिक्स्ड एसेट भी होगी। हाँ एक मिनट, हाँ चलो आप बता दो। अजय थोड़ी सी कमी रह गई इसमें। हाँ प्रशांत बता। Anything which is in the position of business and the property of business or amount which take from others. Assets can be classified as first current assets. Those assets which are held for short period and can be converted into cash within 1 year. For example, stock, capital. Second, non-current assets. Those assets which are held for long period and used for normal business operation. Example, land, building. So these are further classified into tangible assets and intangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen or touched, and intangible assets are those assets which can be feel or hear. और एक आपके, हाँ ठीक है, एक आपके वो थे ना, वॉशिंग एसेट्स, वास्टिंग एसेट्स जिसको बोलते हैं। चलो हो सकता है आपकी बुक में यही हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जिसका स्पीकर बंद है बेटा May बंद I, करिए। sir? हाँ स्पीकर बंद करिए, जिसका भी आवाज आ रही पीछे से। देखना बेटा किसका स्पीकर ऑन है, ये कनिष्ठ देखना इसको। सर पारस क्या है सर? हाँ पारस है, पारस कटारिया, पारस कटारिया बंद करिए स्पीकर को। पारस बेटा स्पीकर को ऑन मत रखो, ठीक है ना। आप कान में लीड लगा लो ताकि डिस्टर्बेंस हमें भी ना हो। हाँ जी चलो, पता चला कि पारस भी अटेंड कर रहा क्लास को। हाँ बेटा रितिका आप एक्सप्लेन कर रहे थे डेफिनेशंस को, बताइए। एंटिटी। Yes, sir. Sir, all fours. हाँ और फोर्स। Okay, sir. First, entity. Entity refers to an economic unit which is formed for earning profit or income by rendering services or selling goods. Second, liabilities. Liability refers to the amount which owner owes and which had to be paid to the creditors. Third, prepaid expenses. Prepaid expenses refers to the amount which have been paid earlier before taking the advantage of that particular service. Fourth, revenue expenditure. Deferred revenue expenditure refers to the expenditure whose benefit we will get for more than a year. For example, advertising expenditure. But which cannot be converted into cash. Whose benefit can be taken from the many years, For more but than 1 which year cannot and be converted into cash. उन deferred expense को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वापस दे नहीं सकते। yes. हाँ जी ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ पारस कटारिया आप बता दो 7th क्वेश्चन का, बिल रिसीवेबल्स, बिल पेबल और इनकम तीनों के डेफिनेशन बता दो। हाँ जी पारस कटारिया, बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स और इनकम। नहीं आता तो कोई खास ऐसी बात नहीं है, आप यस या नो बोल दो कि अगर इफ यू आर नो इट देन यू कैन से यस, और नहीं तो बोल दो नहीं सर कोई खास बात। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ओके। उसके बाद दूसरा जो है आपका ये क्या नाम है, ईशांत आप एक्सप्लेन द फॉलोइंग।
शांत, क्या आवाज? कनिष्क, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? कनिष्क, Yes, sir. हाँ, तो ये ईशांत नहीं क्या लाइन पे? ईशांत, आर यू हियरिंग मी? हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो आप इनका 7वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स: बिल रिसीवेबल्स, बिल पेबल एंड इनकम। Sir, first bills receivable. A bill of exchange when accepted by a debtor is called bills receivable. A bill of exchange is an order instrument written by a creditor and accepted by a debtor to pay a certain amount on demand or after a certain period. Second, bills payable. When credit purchases are made, the settlement payment to the creditor is sometimes done through a document known as bills payable. These bills are accepted by the business and will be honored by paying to the suppliers on the date mentioned on the bill. So third is income. Income is different from revenue. The difference between revenue and expense is called income. ओके, ओके, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग assumptions or principle of accounting: going concern assumption, consistency assumptions and matching principle। ठीक है, इसका आंसर दे। कौन बोल रहे हैं? गर्ग? संदीप। Yeah, sir. संदीप जांगड़ा, अच्छा, काफी दिन बाद है बोला। हाँ बोलो संदीप, इसका आंसर देने दो भाई। संदीप काफी दिन बाद आंसर दे रहा है। Going concept, sir. We assume that the business will be going to exceed for a long time of period, sir. In future, sir. For example, sir, we purchase a machinery, then we have used by many years, sir. हाँ, एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ सर, ये तो अभी तो चल ही रहा है चौथा पीरियड। नहीं, वो तो घंटी से हुआ ना यार, इसमें नहीं हुआ। आप आ जाओ, आना तो आ जाओ। हाँ जी, ठीक है बेटा, आगे बोलो। कंसिस्टेंसी assumption। Sir, in this concept, the accounting principle of our remain constant, sir, from one year to another year, sir. और थर्ड, मैचिंग प्रिंसिपल। Sir, matching in this concept, sir, the first cost with the revenue should be recognized, and second, work done generated that revenue should be recognized. ठीक है जी। आज ये बीच में ये जो म्यूजिक चला रहे हैं, ये गलत बात है भाई। आज 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो हमने चैप्टर करवाया नहीं, छोड़ो इसको। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। हाँ जी, इसका अजय गर्ग। यस सर। हाँ, इसका आंसर दो बेटा। सर, ये चैप्टर रिवाइज नहीं करे सर मैंने। अच्छा अच्छा, चलो खैर छोड़ो। हाँ जी, तो ऋतु, ऋतु। हाँ बताइए। नहीं आ रहा? चलो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हाँ जी, ये क्या नाम था इसका? जांगड़ा, संदीप जांगड़ा, आपके लिए दोबारा से क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। यस सर। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आता तो आंसर दीजिए इसका। नो सर। नहीं आ रहा? हाँ, रितिका। Sir, is this principle same as of business entity? हाँ हाँ। Okay, sir. Sir, according to accounting entity principle, business is treated as separate unit from its owners, creditors, and other members. In other words, the owner of business is always considered as distinct and separate from the business he owns or the other business which he run as separate. For example, the proper. One second, sir.
because of the concept of the separate entity, the proprietor's house, his personal investment, his personal capital, car, or his personal asset will be considered separate from his business entity. Also, if the proprietor has some other business entity doing another business, the record of the business should also be kept separate from this business. In the absence of this concept of separate entity, net profits and financial positions of the business ओके 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 समझ गया मैं the concept of ओके ठीक है बेटा थैंक यू अगला 11th क्वेश्चन है ये हालांकि है तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पर मैं इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ आप पहले ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री बताइए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120 अजय सर मैं बताऊं सर हाँ बोलो सर कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट देखो एक क्वेश्चन तो है अकाउंटिंग इक्वेशन का पर मैं इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ ये आप इसका गलत मीनिंग मत समझ लेना आप इसको जना अकाउंटिंग इक्वेशन में ही समझना पर मैं वैसे कर रहा हूँ जनरल एंट्री तो आपका अजय का क्वेश्चन का आंसर सही था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हाँ जी सेकंड आपके पास है कनिष्क इसके लिए है रेंट रिसीव्ड 10,000 रेंट रिसीव्ड 10,000 excuse me सर मैं बताऊं हाँ सर रेंट अकाउंट डेबिट टू सर सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट कैश अकाउंट डेबिट रेंट रिसीव्ड हाँ रितिका कुछ बोल रहे थे आप क्वेश्चन के अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तब हम शेयर्स का मतलब एक अलग कॉलम बनाएंगे एसेट्स के अंदर हाँ बिल्कुल अलग से बनाएंगे ठीक है ना इन्वेस्टमेंट के नाम से बनाएंगे और शेयर के नाम से नहीं इन्वेस्टमेंट के नाम से बनाएंगे ठीक है या शेयर के नाम से बना तो भी सही चलेगा कोई दिक्कत नहीं हाँ जी ये माइकॉन किसका बेटा ये बंद करिए इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस टू वी पीपल हाँ जी नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000 हाँ जी ये ध्रुव इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000 ध्रुव आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को इन्वेस्टेड इन शेयर्स नहीं सुन पा रहे हाँ जी पारस कटारिया सुन रहे हैं आप मेरे को इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000 ऋतु नहीं है ऋतिका आप बता दो बताइए सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिल्कुल सही है आपका आंसर ठीक है जी थैंक यू हाँ जी रिसीव्ड डिविडेंड 5,000 रिसीव्ड डिविडेंड 5,000 हाँ जी कनिष्क सर डिविडेंड टू कैश हाँ जी डिविडेंड टू उल्टा बोल गया सर कैश सर कैश उल्टा बोल अकाउंट गया टू कैश कैश हाँ, अकाउंट कैश टू डिविडेंड अकाउंट अकाउंट हाँ कैश ठीक है ना ये हाँ जी नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रागिनी may I हाँ सर बोलिए मैं बताऊं रितिका बोल रही है the purchases are to Ragini's account. क्या बोला बेटा आपने The purchases account dated to Ragini's account. परचेज अकाउंट रागिनी अकाउंट ठीक है क्योंकि उधार पे कैश में नहीं है इसमें ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा था कौन सा लड़का बोल रहा था कि पेड कैश टू हाउस होल्ड एक्सपेंस 7,000 सर मैं बताऊं बोलिए सर हाउस होल्डर एक्सपेंस टू कैश अकाउंट सर नहीं बेटा थोड़ी सी गलती कर दी बाकी एंट्री तो ठीक है थोड़ी सी गलती है हाउस होल्ड एक्सपेंस को सर, ड्राइंग मिस- बोलते हैं हाँ यस सर हाँ हाउस होल्ड एक्सपेंस को ड्राइंग बोलते हैं तो हमारे एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश But sir, इन्होंने बिजनेस में थोड़ी कैश करवाए हैं हाँ बेटा सर ये बिजनेस से थोड़ी ना अमाउंट कैश करवाई है इन्होंने हाँ बिजनेस से करो बेटा Drawings पेड कैश तो होगी, हाउस sir. होल्ड एक्सपेंस ये ड्राइंग मानी जाए सर क्योंकि बेटा ड्राइंग्स ये तो हमारे तभी बिजनेस मतलब जो बिजनेस में हाँ तो नेचुरली बिजनेस में से यूज किया है क्योंकि इसमें जो आपके जो ट्रांजेक्शन है बिजनेस ट्रांजेक्शन प्राइवेट ट्रांजेक्शन तो हम लेते ही नहीं है
तो ये यहाँ पर अगर दिया है ना कि पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इट मीन्स इट इज पेड फ्रॉम द बैंक, इट इज पेड फ्रॉम द बिजनेस, तो नेचुरली इट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग, ठीक है ना। You are correct at your place that if that is paid from his own pocket, then that will not be the transaction of the business and that will not be recorded. But here this is paid from the business, it is assumed to, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि ये आपका बिजनेस में से पे किया तो ड्राइंग कह रहा है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस के लिए है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 14,000। हाँ जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000, 10,000 का माल 14,000 रुपये बेचा है, तो क्या होगा? सर हाँ, sure, cash account debted to sales account. कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितना रुपए से? 10,000 से 14,000 से? सर 10,000। नो सर 14 आएगा। 14,000 से, क्योंकि हम Profit आए add रेट हुआ में है थोड़ी सर बेचेंगे माल, प्रॉफिट ऐड हुआ, बिल्कुल सही है Profit। आप। ओके, ये सिर्फ एंट्री यही होगी कि कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 14,000, 4,000 प्रॉफिट एंड अकाउंट में चले जाएंगे ना। हाँ बेटा, वो तो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब होगा, अभी तो हम सिर्फ ये करेंगे बेचा कितने का माल, कैश कितना है, बस ये देखेंगे। कैश पेड टू रागिनी 35,000। सर रागनी सर, अकाउंट रागिनी टू account- कैश अकाउंट सर। रागिनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल ठीक है आपका। 35,000 सर। 35,000। लास्ट इसमें डिपॉजिट टू बैंक 20,000। सर बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट टू डेबिट कैश। टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम ये करेंगे, कल इससे आगे करेंगे हमने जो है अब तक 11 क्वेश्चन किए हैं, हम आगे करेंगे इससे आगे, ठीक है जी। और हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को हम जनरल एंट्री मान के चलेंगे और हम जनरल एंट्री की ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो हम Okay, sir. कल फिर मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।